हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओएनजीसी मॉक इंटरव्यू सेशंस। गाइस, ये पूरी सीरीज है इंटरव्यू सेशंस की, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स जो ओएनजीसी के इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लगे, पैटर्न पता लगे और ये समझ में आए कि किस तरह से तैयारी करके जानी है। हर इंटरव्यू सेशंस के एंड में हम हर स्टूडेंट को फीडबैक भी दे रहे हैं। और गाइस, ये सब फीडबैक ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि आप लोगों के लिए भी है जो ओएनजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली 180 प्लस स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। सबका मॉक इंटरव्यू तो नहीं ले सकते, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि लगभग 20 से 30 स्टूडेंट्स का हम मॉक इंटरव्यू कर पाए। तो गाइस, ये उसी सीरीज के कुछ इंटरव्यूज है। आई वांट कि आप ध्यान से इसे सुनना, पेन एंड पेपर लेके बैठना, और जो भी क्वेश्चंस हम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, एटलीस्ट उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास हो। और जो भी टिप्स एंड फीडबैक हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, आप उन सारी टिप्स पे काम करो, उन सारे फीडबैक पे काम करो, ताकि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। Okay, Harshita, introduce yourself. Yes, good evening, sir. I'm Harshita Kaji, a final year undergraduate student in chemical engineering from College of Engineering, Andhra University. I'm from Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and currently we are working on our final year project, that is manufacturing of sulfuric acid via DCDA process. And I've done my internship at Reliance Industries Limited, Jamnagar. And during the course of my internship, I've worked on efficiency of air preheater present in sulfuric acid regeneration unit. And it was an 8-week internship program. And during the course of my engineering, I've excelled my leadership as well as social skills. And apart from academics, I utilize my free time by reading books as well as listening to music. And I'm extremely happy for this opportunity you have provided for me, sir. Thank you, sir. That is about me. Tell me more about your project, Harshita. Yes, sir. We've a group of and we've chosen sulfuric acid for 6. We've done our internships at sulfuric acid plants, and in the sulfuric acid production, we are incorporating the introduction history as well as material and energy balances, and an equipment design and plant layout as well as economic validations of sulfuric acid production, sir. And we during the initial years, the process we are using for sulfuric acid is DCDA process, and the data we have taken from Coromandel Tell me the Industries, difference that is between present. sulfuric acid and oleum. Tell me the difference between sulfuric acid and oleum. Yes, oleum is formed when SO3 reacts with water. It is H2S2 O7, sir, and sulfuric acid is H2SO4, and it is formed via absorption of SO3 in H2SO4 itself. Fuming sulfuric acid, oleum is nothing but fuming sulfuric acid, sir. No issue. Okay, great. Manish sir. So Harshita, very good. So Yes. tell me about your favorite subjects. So I'm good in fluid mechanics and heat transfer and mass transfer too. All right. So tell me the modes of the heat transfer. So heat transfer is basically done by conduction, convection, and radiation, sir. Okay. In conduction, That's it. That's. Tell me the governing equation of the radiation. so it is a Stefan-Boltzmann equation. There are different governing equations of radiation. The Stefan-Boltzmann equation, Planck's equation, Wien's displacement law, and the Kirchhoff's law. Mathematical expression इसका क्या है? What is the mathematical expression of Stefan-Boltzmann law? The heat flux per unit time is directly proportional to the 4th power of temperature, sir. Okay. All right. So have you studied heat exchanger? Yes, sir. Heat exchanger आपने पढ़ा है? हाँ, sir. पढ़िए. Okay.
So you know in the heat exchanger there are two type of the flow mainly, counter and parallel, right? So can you draw the temperature profile in both type of the flow? Yes, sir. Should I draw it on a paper and show it Yeah. to you, sir? Yes. So do you have paper? Yes, sir. Just Only temperature profile draw करनी है दोनों फ्लो की. हाँ, मैंने ड्रॉ तो कर लिया उसे, but I'm unable to get to rotate my showing. इस तरीके से आप दिखा सकते हो, जैसे like this is the paper ना, you can show like that, you can show like. Yes. Not visible properly. Okay, so I'll try it. all right, all okay, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है प्रॉपर, ठीक है. सो इन हीट एक्सचेंजर आपने टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करी होगी. इन केस ये प्रोसेस आपका फेज चेंज हो जाता है ना, कोई फेज चेंज प्रोसेस के लिए हम लोग जो बात करते हैं, ये आपने टेम्परेचर प्रोफाइल नॉर्मल फ्लूइड के लिए ड्रॉ करी है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ उनका सर. Yes, sir. ये प्रोसेस ऐसा हो जाए कि फेज चेंज प्रोसेस हो जाए, राइट? तो इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल sir. कैसे बनेगी? सर जो फेज चेंज हो रहा है उस फ्लूइड का टेम्परेचर हो जाएगा एकदम, क्योंकि ड्यूरिंग फेज चेंज नो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन. ओके, सो उसका हॉरिजॉन्टल जाएगा या उसका भी लेंथ के साथ डिक्रीज करेगा टेम्परेचर, या इंक्रीज करेगा? ना एक जो फ्लूइड हॉरिजॉन्टली जाएगा सर, जिसका फेज चेंज हो रहा है उसका उसका मतलब हॉरिजॉन्टली रहेगा. ओके, हॉरिजॉन्टल जाएगा. तो हॉरिजॉन्टल क्यों जा रहा है, ये रीजन बता सकती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों जाती है? जो टेम्परेचर प्रोफाइल होती है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन के लिए आप ड्रॉ करते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करते हैं. तो कैन यू टेल मी द लॉजिक बिहाइंड दैट, क्यों वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों रहती है? हाँ सर, क्योंकि फेज चेंज अब ये टेम्परेचर बढ़ता है या घटता नहीं है, जिस फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है. Okay. तो वो तो टेम्परेचर और बढ़ भी Yes, नहीं yes, रहा है, yes, तो yes. वो हॉरिजॉन्टल. Very good, great. Okay, so next subject you told me the mass transfer, right? As well, I Yes. think. So in mass transfer you observe in the industries, you know, कि distillation somewhere, you know. तो डिस्टिलेशन में आपने देखा होगा कि एक होता है मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, राइट? और एक होता है एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो, जहां पर हम ऑपरेट करते हैं, और मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो एक वर्स्ट सिचुएशन है. तो इन केस में रिफ्लक्स रेशियो को, लिसन वेरी केयरफुली, इन केस में रिफ्लक्स रेशियो को मिनिमम रिफ्लक्स से भी थोड़ा सा बिलो लेकर जाता हूं, राइट? एक हमारा मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है, और मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो से भी मैं बिलो लेकर रिफ्लक्स रेशियो चला गया, तो क्या सिचुएशन होगी कॉलम के अंदर? तब तो फ्लूइड कम हो जाएगी, तो उससे वीपिंग हो सकती है, और नंबर ऑफ तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता, मतलब रखने पड़ेंगे. हल्का सा
हल्का सा एक बार कैन यू प्लीज रिपीट वंस अगेन? सर अगर रिफ्लक्स जो मिनिमम से भी घट जाती है तो लिक्विड फ्लो बहुत कम हो जाएगी, हो सकती है। अंकुर सर शायद वॉइस का कुछ इशू आ रहा है, प्रॉपरली मतलब सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या बोल रही हैं। थोड़ा सा लैग है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हर्षिता, can you tell us यस सर। can you tell us the difference between the scope 1 emission and scope 2 emission? Scope 1 emission and scope 2 emission with respect to ONGC or with respect to this oil and gas industry. What are scope 1 emission and scope 2 emission? I'm sorry sir, I'll learn about it. I don't have Okay. idea about it currently. Okay, no issue. Tell me one thing, in the ONGC, you must have read about the CSR initiatives that ONGC is putting much of its profit into the CSR funds. So what are the initiatives taken by the ONGC towards the CSR? नहीं सर, वो CSR के बारे में पढ़ा नहीं है, बस सस्टेनेबिलिटी का पढ़ा था, अभी पढ़ूंगी। You haven't visited our website? ये सर विजिट किया था, लेकिन अभी बस वो का ही देख रही थी, ONGC का देख रहे हैं सर, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का ही देख रही थी। कभी देख When is your रहा interview scheduled? When is your interview scheduled? अप्रैल को है सर। 15th April. 15th. Okay, you must have visited. ठीक है, no issue. Manish sir, continue. यस। सो हर्षिता, अभी आपने बताया कि आपने इंटर्नशिप वगैरह वहां से कर रखी है, तो बीटेक में जो प्रोजेक्ट था, इंटर्नशिप में कुछ लिंक था या आपने बीटेक का प्रोजेक्ट इंटर्नशिप दोनों अलग अलग थे आपके? थे, लेकिन हमने जो बीटेक का प्रोजेक्ट किया था वो सल्फ्यूरिक एसिड का इसलिए चुना क्योंकि हमने इंटर्नशिप सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में किया था, इसलिए सर दोनों अलग ही थे। ठीक है, ऑलराइट। सो हर्षिता, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। माता पिता जी क्या करते हैं आपके? My father is an businessman and my mother is an homemaker. I have an elder sister and a younger brother, sir. My sister is working in Infosys and my younger brother is in 11th standard. ऑलराइट। हर्षिता, आप मुझे एक चीज बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेटर एंड बॉयलर? सर इवापोरेटर में बस वो जो लिक्विड होता है, मतलब जो भी हम फीड दे रहे हैं उसमें से लिक्विड को निकालना होता है, मतलब वाटर को निकालना रहता है। पर बॉयलर में हम वाटर को बॉयल कर, मतलब DFW को उसका टेम्परेचर बढ़ाना रहता है और स्टीम जनरेट करना रहता है। द मेजर कंसर्न विद बॉयलर इज टू जनरेट स्टीम, whereas for an evaporator it is to remove the liquid content from the feed, sir. But why we are removing the liquid content? What is the purpose? To concentrate the feed. Pardon? In an evaporator, to concentrate, make it more concentrated. To concentrate the feed. Yes, sir. Okay. Manish sir. यस, फीड फॉरवर्ड और फीड बैकवर्ड में क्या डिफरेंस है? कब यूज करते हैं फीड बैकवर्ड और फॉरवर्ड? सर फीड फॉरवर्ड में ये जो प्रेशर, फीड फॉरवर्ड में प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जाता है, घटता जाता है फीड फॉरवर्ड में, और मतलब विद द सीरीज ऑफ इवापोरेटर्स, whereas in फीड बैकवर्ड हमें बढ़ाना पड़ता है। किसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है? फ्लूइड किसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है फीड फॉरवर्ड में और फीड बैकवर्ड में? इवेपोरेटर के अंदर जो प्रेशर है उसका या सॉल्यूशन का, किसका? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन तो एक ही है ना, जहां से अपना स्टीम इंटर हो रहा है वही तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, राइट? तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है, घटता चला, एक बार जरा इस पे सोचो, ऐसा होता है क्या?
मतलब जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो घटता चला जाता है कि पंप का यूज ना हो, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इवेपोरेटर में चले जाए। लेकिन बैकवर्ड में हमें पंप का यूज करना रहता है, तो उसे एक्सटर्नली प्रेशर पंप करना रहता है। और बैकवर्ड एनी फीड इवेपोरेटर में यस ओके, एरिया एनी अदर रीजन? जो बैकवर्ड फीड ओके, प्रेशर वाला रीजन, ओके ठीक है, प्रेशर वाला रीजन एक लॉजिकली आपकी बात समझ में आई। और भी कोई रीजन हो सकता है क्या? एक तो ये पंपिंग कॉस्ट से रिलेटेड आपने बोला कि फीड फॉरवर्ड में पंपिंग कॉस्ट की सेविंग हो जाती है, इस वजह से उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। और भी कोई कारण हो सकता है क्या इसको डायरेक्शन को चेंज करने का? फीडबैक एरिया कम, मतलब सेम कंडीशन में एरिया कम यूज होते हैं, मतलब एरिया रिक्वायर कम रहती है फीड बैकवर्ड फीड फॉरवर्ड से कंपेयर। तो अगर ठीक हमें है, और बेटे एक बार ये वाला पार्ट अपने एंड से थोड़ा सा देख लेना है ना, इसको थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार। यस अंकुर सर। ओके ठीक है हर्षिता, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है ना, आपने ठीक प्रिपेयर किया है। थोड़ा उसका कमर्शियल वायबिलिटी, मतलब कि वो जो प्रोजेक्ट है उसका क्या पर्पस है, H2SO4 के क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशंस है, इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कौन सी साइट्स है जो प्रोडक्शन कर रही है, कितनी टोटल कैपेसिटी है H2SO4 प्रोडक्शन की, तो वो सब एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी प्रोजेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, दैट्स ए प्लस पॉइंट। सेकेंड थिंग, नेगेटिव पॉइंट इज आपको ओएनजीसी के बारे में पढ़ना है, ओएनजीसी क्या कर रहा है, ओएनजीसी की क्या सब्सिडरीज है, सीएसआर इनिशिएटिव्स क्या है, कार्बन मैनेजमेंट कैसे करना है, एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करता है, और इसके अलावा नेट जीरो के टारगेट्स क्या है, एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली जो जो बातें मैंने अपने जो इंटरव्यू सेशन मैंने लिया था ओएनजीसी का, मैंने बताया था कि ये सब कुछ पढ़ लेना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सब चीजें इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। जो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछे ये सब भी ओएनजीसी की वेबसाइट पर ही दिया हुआ है, चाहे वो स्कोप 1 इमिशन, स्कोप 2 इमिशन हो या बाकी चीजें हैं, ये सब ओएनजीसी वेबसाइट पर है। सो आई वांट यू टू गो थ्रू दैट वेबसाइट। बाकी जहां तक सब्जेक्ट्स की बात है, तो मुझे तो सब्जेक्ट्स ठीक लगे, मतलब जहां पर आपके जोन में क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर कर पा रहे हो। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने पर मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं डाउट्स आ रहे हैं, बाकी मनीष से थोड़ा अच्छा बता पाएंगे इसके बारे में। हाँ फ्लो अच्छा है आपका, ओके बहुत बढ़िया है। हाँ यू आर कॉन्फिडेंट भी आप दिख रही हो। बस थोड़ा ये कि थ्योरेटिकल वाला पार्ट है ना, जैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कोई पूछा जा रहा है बेसिक, उसका तो आप आंसर बहुत सही से दे रही हो, तो थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट कर दिया जा रहा है, तो उसको ट्राई करो कि आंसर या आपको सही पता है तो बताओ, अदरवाइज सॉरी बोल दो, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आस्किंग कर सकती हो, है ना। वहां पे मतलब उसको एक्सटेंड करने की नीड नहीं है, इनकेस नहीं आ रहा है तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती हो। यस सर। ठीक है, बाकी यू आर हाँ कॉन्फिडेंट, है ना, कॉन्फिडेंस है, बस थोड़ा सा आप जब आंसर कर रहे हो तो एक स्माइल के साथ आंसर करना है। ओके, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा पॉजिटिव रखना है कि आपको आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, और जो अपनी पिच है, पिच थोड़ा सा टेम्पो थोड़ा सा स्लो रखना है, बिकॉज दैट मे हैपन कि जो पैनल बैठा है ना, और जो आप हो, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो मे बी मैच ना करे, मे बी डिफरेंट हो, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड यू। ओके, सो टेम्पो थोड़ा सा अपना स्लो रखना है। हमें भी कई बार पूछना पड़ रहा था दोबारा कि आपने क्या बोला, है ना, सो दैट्स वाई टेम्पो थोड़ा सा, वैसे तो ठीक है, सबको समझ आ रहा है, बट थोड़ा सा स्लो। बाकी जो भी पॉइंटर्स है वो आप ध्यान रखना हमने जो बोले, और बाकी के जो इंटरव्यूज है वो भी एक बार जरूर देख लेना, उसमें से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। सो गाइज आई होप आपको इंटरव्यू के अंदर सब कुछ समझ में आया होगा, सब क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे, और जो फीडबैक हमने स्टूडेंट्स को दिया है वो फीडबैक भी आपने नोट कर लिया होगा। आई जस्ट वांट कि आप एक एक इंटरव्यू को सीरियसली लो, और जो भी बातें बच्चों को बताई जा रही है आप उन सब बातों पे अमल करो, और डेफिनेटली आप भी ओएनजीसी के इंटरव्यू में सक्सेस हासिल करो। आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 11 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक अनअकैडमी का स्पेशल लर्निंग सीरीज फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी हमारे प्रोफाइल्स में जाइए, आपको
हमारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी लर्निंग सीरीज के अंदर और आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को सीखने का मौका मिलेगा. सो गाइस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स एंड दैट टू फॉर फ्री. तो फ्री क्लासेस रहेगी. आई वांट कि आप सारी क्लासेस जरूर अटेंड करो. एंड गाइस, उससे भी बड़ी चीज, अगर आप PSU 2025, PSU 2026, गेट 2026, गेट 2027 या PSU 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, ड्रॉपर हो, जॉब कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, घर बैठे आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ गेट एंड PSU की प्रिपरेशन करवाई जाएगी. और उसके लिए अनअकैडमी ने एक बहुत अमेजिंग ऑफर लॉन्च किया है जिसमें आपको 60% ऑफ प्रोवाइड किया जा रहा है. जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना. अगर आप कोड यूज करते हो अंकुर 073 तो आपको गाइस 60% डिस्काउंट मिलेगा सभी गेट एंड PSU के सब्सक्रिप्शंस पे. और जो प्राइसेस शायद ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में लैक्स ऑफ रुपीस होता है, वही गेट कोचिंग आपको 1 ईयर के लिए 9,999 में और वही गेट कोचिंग आपको 2 इयर्स के लिए 16,999 के अंदर प्रोवाइड की जाएगी. तो गाइस, आई वांट कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो और हमारी गाइडेंस में, मेरी गाइडेंस में आज ही सब्सक्राइब करके अपनी जो जर्नी है वो शुरू करो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ऑफर एंड्स टुमारो. तो गाइस, इससे पहले कि ऑफर एंड हो तो आप पहले ही सब्सक्राइब करके अपनी जो जर्नी है वो मेरे साथ स्टार्ट करो. आज से नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और उन नए बैचेस में एनरोल करके आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो. एंड गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लेना. सारी अपडेट्स केमिकल इंजीनियरिंग की आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी. द लिंक इज t.me/ankurlive. इट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. एंड ये हमारे सिलेक्शंस है 2025 के. हर साल की तरह 2025 में भी हमारा रिजल्ट अमेजिंग रहा है. ये हमारे सिलेक्शंस है 2024 के और रिपीट किया हमने इस परफॉर्मेंस को 2025 में. ये हमारे सिलेक्शंस है NPCL 2024 के. ये हमारे सिलेक्शंस है IOCL 2024 के. सो गाइस, ईयर बाय ईयर हमारे सिलेक्शंस है 2023 गेट के टॉप 30 स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ. तो ईयर बाय ईयर हम अपने सिलेक्शंस को रिपीट करते जा रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं, बेहतर बनाते जा रहे हैं. तो आप भी इस कड़ी में जुड़ सकते हो और अपनी जर्नी शुरू करके अपने आप को सक्सेस की राह तक लेके जा सकते हो. सो आज का सब्सक्रिप्शन आपके लिए कल का सिलेक्शन साबित हो सकता है. इसीलिए डोंट वेट, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो कंटेंट है वो मजेदार भी है और असरदार भी है. एंड गाइस, द मोस्ट आइकॉनिक डुओ ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग इज नाउ बैक. और पूरी केमिकल इंजीनियरिंग की स्टडीज आप देख सकते हो एक्सपीरियंस एजुकेटर्स के अंडर में आपको प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा. साथ ही साथ मनीष राजपूत सर एंड देवेंद्र पुनिया सर इज ऑल्सो देयर इन द प्लेटफॉर्म, जो कि आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाते रहेंगे. तो चारों फैकल्टीज मिलकर आपको केमिकल इंजीनियरिंग की कंप्लीट कोचिंग यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे कि हर समय सारे सब्जेक्ट्स लाइव कोई ना कोई एजुकेटर पढ़ा रहा होता है. तो आपके पास लाइव पढ़ने का मौका है, आपके पास रिकॉर्डेड पढ़ने का मौका है. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. यूज द कोड अंकुर 073 एंड बिगिन योर जर्नी नाउ. एंड गाइस, जो लोग अभी तक जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आप इस बार कोड को स्कैन करके मुझे फॉलो कर सकते हो. एंड अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं, आई एम द अंकुर बंसल, HOD ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग. एंड गाइस, आई एम मास्टर्स फ्रॉम IIT दिल्ली और इस फील्ड में लास्ट 13 ईयर से हूं. दिस इज माय 13th गेट ईयर and these are the subjects that I teach. So don't miss this opportunity to learn the chemical engineering under my guidance. Use the code अंकुर 073 and begin your journey. और ONGC के सारे mock interview sessions को जरूर सुनना और make notes and then follow. All the best guys. Let's crack it.